Hello students, hope you are doing well. So here I am your online educator Tanya, and today I am going to teach you class 8th ICSE chapter heat transfer. So this one is really an interesting as well as an important chapter from the exam point of view. So please students listen it very with great concentration and focus. And as always, this is an MCQ series and in which you will be provided with more than 40 questions. So please listen it with great focus and concentration. Okay students, and yes, this is the first part of the video, and if you want the second part of the video, so please comment it down fast so that I can provide you with the second part of the video as well. Okay student, yeah, one more important thing is that you are provided with full chapter notes this time. Okay, you just need to visit the Telegram channel Study with Hitesh sir, and please join this channel Study with Hitesh sir, and you just need to go to the description box and just join this channel, and all the stuff that is it will be available in the form of PDF. Okay students, so let's move further to our session now. So the first question is, yes, 1 calorie is equal to. So students, you knew the answer, please comment it down fast. Okay, so the options are option A 1.2 joule, option B 3.2 joule, option C 4.2 joule, and option D none of these. So students who who knew the answer, please comment it down fast. So the right answer for this is option C. Yes, so the right answer for this is option C 4.2 जूल. अब स्टूडेंट्स देखो, 1 कैलोरी होता क्या है. कैलोरी क्या है? एक यूनिट है किसका? हीट को मेजर करने का. अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि 1 कैलोरी होता क्या है. 1 कैलोरी इज हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. क्या है? 1 ग्राम हम वाटर लेंगे और इसका टेम्परेचर रेज़ करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस रेज़ करने के लिए जितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस कि सपोज एक्स हीट एनर्जी चाहिए किसको? 1 ग्राम ऑफ वाटर को रेज़ करने के लिए, ताकि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो, इसका टेम्परेचर रेज़ हो जाए. तो उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? कितनी हीट एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे 1 कैलोरी. मोस्टली जो 1 कैलोरी किसकी इक्वल होती है? 4.186 जूल के इक्वल होती है. बट अप्रॉक्सीमेटली हम कितना लेते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हम 1 कैलोरी को 4.2 जूल्स लेते हैं. सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी 4.2 जूल. ओके स्टूडेंट्स, I hope you got the clarity for the same. So the next second question is, temperature at which molecular motion completely ceases is known as. Ceases means stops. Okay, so the temperature at which molecular motion completely ceases is known as option A absolute zero, option B boiling point, option C evaporation. So students who knew the answer, please comment it down fast. What will be the right answer for this? Yes, so the right answer for this is option A absolute ज़ीरो. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर टू बी अटेन्ड. मतलब कि जितना हम लो से लो टेम्परेचर को जिसको अटेन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ज़ीरो. देखो मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ. जैसे हम एक बीकर लेंगे और उसके अंदर पानी है. सपोज़ उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. सपोज़ इस पानी का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, अब 50 डिग्री सेल्सियस है और हमने पढ़ा था जब भी हीटिंग होती है तो इसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है. राइट, और मॉलिक्यूल्स क्या है? कुछ ना कुछ मूव करते हैं. राइट, अब जैसे इसका आगे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ भी करेंगे, 60 डिग्री करेंगे, 70 डिग्री करेंगे, तो फिर क्या है? धीरे धीरे ये वेपर्स की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा. जब ये वेपर की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा तब भी क्या है? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ी ना थोड़ी मूवमेंट होती है. ठीक है, बट अब क्या है? जब इसी पानी को जो 50 डिग्री सेल्सियस था इसका टेम्परेचर हम क्या करते जा रहे हैं? अब डिक्रीज़ करते जा रहे हैं. 40, 30, 20 ऐसे क्या कर रहे हैं? डिक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो इसका क्या है? जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे मतलब स्लो होनी शुरू हो जाती है. राइट, तो एक टाइम अगर जैसे आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आपका पानी क्या बन जाएगा?
आइस बन जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, आइस बन गया तो इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। बट स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी क्या होता है कि नो डाउट कि आइस जो वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, आइस में कन्वर्ट हो गया है, बट स्टिल क्या है, पानी की मूवमेंट, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से भी इसका टेम्परेचर कम करते हैं, माइनस में ले आते हैं, और जब हमारा टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, बिल्कुल ही मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी नाउ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो है जब टेम्परेचर, जबकि आपकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है उसके पास बिल्कुल कम एनर्जी होती है, या फिर हम ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं जब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती किसकी, मॉलिक्यूल्स की, तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 3. There are dash forces of attraction between the gas molecules. So the options are option A more, option B less, option C negligible. So students, this one is an easy question, so please comment it down what will the right answer for this. So yes, so the right answer for this will be option C negligible. देखो, अब आपने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़े होंगे, है ना। तो क्या कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स में आपको पता है कि ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लिक्विड क्या होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस थोड़ी होती है। एंड गैसेस क्या होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्पेस में दूर दूर होते हैं, और इसमें क्या है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं। ठीक है, बट अब आते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब आपका क्वेश्चन क्या था, देयर आर डैश फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं किसके अंदर, गैसेस के अंदर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, जो आपकी इवेपोरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी सरफेस एरिया, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। सो स्टूडेंट्स, यू न्यू द आंसर, प्लीज कमेंट इट डाउन व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस. Yes, so the right answer for this is yes, all the options are correct. जो आपकी इवेपोरेशन है वो बिल्कुल चारों के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, विंड के ऊपर भी, सरफेस एरिया के ऊपर भी, और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी। देखो, अब टेम्परेचर ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा आपकी इवेपोरेशन होगी। ठीक है, विंड के ऊपर, अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप अपने कपड़े सूखने डालने जाते हो धूप के अंदर, धूप में, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब धूप के साथ अगर थोड़ी हवा भी चल रही हो तो आपके क्या है, कपड़े जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर अकेले धूप में सुखा रहे हो। क्यों, इससे आपकी क्या है, विंड क्या करती है, इवेपोरेशन को, रेट को बढ़ाने में हेल्प करती है, इसलिए आपके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। सो विंड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। येस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या है, येस, इवेपोरेट होंगे, और आपका क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द क्लैरिटी फॉर द सेम. सो द करेक्ट आंसर इज दैट all the options are correct. Okay students, let's move to our next question. Question number, heat is measured in, okay, heat किस में measure की जाती है, right? So your options are option A Joule, option B calorie, option C both A and B. So students, you knew the answer, please comment it down fast. What will the right answer for this? Yes, okay, so the right answer for this is option C both A and B. heat मतलब दोनों कौन से यूनिट्स हैं, दोनों ही यूनिट्स हैं किसके, हीट के, जूल भी एंड कैलोरी भी। और जो ऐसे यूनिट है वो कौन सा है हीट का, जूल इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ हीट। एंड कैलोरी तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कैलोरी क्या होता है कि कितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है, एक मतलब आपका टेम्परेचर रेज करने के लिए, किसका, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका इवेपोरेशन का मतलब आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो। सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो स्टूडेंट्स, यू न्यू द आंसर, प्लीज कमेंट इट डाउन व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस.
yes, so the right answer for this will be yes option A increases. देखो इसमें किसके साथ रिलेशन हम देख रहे हैं, टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे हैं, किसके ऊपर, रेट ऑफ इवेपोरेशन का। देखो यहाँ पे 2 बीकर्स दिए हैं जिसमें एक का टेम्परेचर हाई है, एक का टेम्परेचर लो है, राइट। तो इवेपोरेशन किस में ज़्यादा फास्ट होगी, जिसका टेम्परेचर हाई होगा। सपोज इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे है। जो आपका 50 डिग्री सेल्सियस वाला बीकर होगा जिसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है, तो उस पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों, जैसे मैंने बोला था, जैसे आपकी हीट एनर्जी मिलती है तो आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। क्यों, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती रहती है और जिसकी वजह से आपका क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो ठीक है, तो क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द क्लैरिटी फॉर द सेम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डैश एक्सपेंशन। ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर ए लीनियर, ऑप्शन बी cubical, option C superficial. So students, you know the answer, please comment it down what will the right answer for this. Okay, yes, comment it down fast. So the right answer for this will be option A linear. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, रॉड का एग्जांपल लिया है कि जब सॉलिड का क्या होता है, लेंथ में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब उसकी ओरिजिनल लेंथ में थोड़ी इंक्रीज आ जाती है तो ऐसी एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी एक्सपेंशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। सो स्टूडेंट्स ये देखो, ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या थी, लेंथ एल थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सॉलिड थोड़ा एक्सपेंड कर गया। कैसे, इसकी जो थी लेंथ इतनी बढ़ गई, तो मतलब चेंज इन लेंथ इतनी हुई। तो इस तरह की एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की एक्सपेंशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन एज़ कम्पेयर टू जो बाकी दो होते हैं। जब आपका एरिया और जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको हम क्यूबिकल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं। बट वो वाली एक्सपेंशन जो किसके साथ, लेंथ ऑफ सॉलिड के साथ जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम लीनियर एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी फॉर द सेम। सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है वो इंक्रीज कब होता है, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द लिक्विड, बाय एडिंग आइस टू द लिक्विड, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लिक्विड। सो स्टूडेंट्स, यू न्यू द आंसर, प्लीज कमेंट इट डाउन फास्ट व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। yes, so the right answer for this will be option B, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन लिक्विड। देखो स्टूडेंट्स, जब हम क्या करते हैं, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं कहाँ पे, लिक्विड सरफेस पे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। देखो अब एनर्जी चाहिए होती है किसको, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करने के लिए। मैंने क्या बताया था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जिनके पास थोड़ी थोड़ी स्पेस अवेलेबल होती है। अब इसको एक्सपेंड करना है तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब ये एक्सपेंड करेगा तो इसकी क्या है, गैसीज फेज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए क्या है, हायर टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड टू गैस। क्या है, इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए अगर इसको अपनी स्टेट चेंज करनी है किसमें, लिक्विड टू गैस में। ठीक है, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, अगर सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है, राइज हो जाता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, सॉरी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम। सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। ओके, ड्यूरिंग बॉइलिंग और वेपराइजेशन all molecules take part, temperature rises, no heat is absorbed, the average kinetic energy of the molecule increases. So students, you knew the answer, please comment it down fast what is the right answer for this. yes comment it down fast. क्या क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है जो बॉइलिंग में अंदर क्या होता है। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए। यस, बॉइलिंग के अंदर क्या है, ऑल मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन बॉइलिंग। देखो आपने डिफरेंस पढ़ा ही होगा बॉइलिंग और इवेपोरेशन का। ठीक है, बॉइलिंग के अंदर क्या है, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ही पार्ट लेते हैं। ठीक है, बट इवेपोरेशन को क्या बोला जाता है, सरफेस फिनोमेना बोला जाता है। क्यों सरफेस फिनोमेना बोला जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जितने भी सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वही इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है किसमें, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन बॉइलिंग। ओके, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम। सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज व्हेन। ठीक है, जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन है
कब इंक्रीज करता है? सो योर ऑप्शंस आर ए टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स, लिक्विड इज poured in vessel of less surface area, option C air is blown above the surface of liquid, option D humidity increases. So what will the right answer for this? Please students comment it down fast. इसका मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि रेट ऑफ एवपोरेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज एयर इज़ ब्लोन अबव द सर्फेस ऑफ लिक्विड. जैसे मैंने आपको पहले भी फैक्टर्स बताए थे, उसमें मैंने एक फैक्टर बताया था विंड, कि अगर विंड अगर ब्लो हो रही होगी तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा. सो राइट आंसर इज एयर इज़ ब्लोन ऑफ द सर्फेस ऑफ लिक्विड. फिर से वही आ जाएगा कि जब आपकी एयर ब्लोन होती है, जैसे हम यहाँ पे फिर से एग्जांपल लिया हुआ है क्लोथ्स का, जब क्या है एयर इसके ऊपर ब्लो होती है तो क्या है, जो भी इसके ऊपर लिक्विड है वो अपने साथ एयर क्या ले जाएगी, अपने साथ ले जाएगी, जिससे इवेपोरेशन क्या है उसका रेट है इंक्रीज हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी. Next, move to our next question. In evaporation, all molecules of liquid begin to escape out. Only molecules at surface surface out. The temperature of a liquid rises by observing heat from surroundings. The molecules get attracted within the liquid. So students, please comment it down. What is the right answer for this? Please fast comment it down. What is the right answer for this? Okay, so yes, the right answer for this is option B, molecules at the surface out. जैसे मैंने पहले भी बताया कि इवेपोरेशन क्या है, एक तरह का क्या है, सरफेस फिनोमिना है. मतलब जो भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं. जो कि आपके अंदर वाले हैं वो बिल्कुल भी इवेपोरेट नहीं करते. इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग में क्या था, उसमें ऑल मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं, बट इवेपोरेशन में क्या है, इट ओनली अकर्स ऑन द लिक्विड सरफेस. ठीक है, और इसको एक और बात याद रखनी है कि इवेपोरेशन को कूलिंग फिनोमेना भी बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम. नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट. ओके, दिस वन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मैच में, आप ही अपने अकॉर्डिंग मैच कीजिए व्हाट की किसका राइट आंसर क्या होगा. सो लेट्स ट्राई टू मैच इट आउट. ओके, ऑप्शन इज ब्लोइंग एयर इंक्रीजेस. ब्लोइंग एयर इंक्रीजेस, व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस, इवेपोरेशन. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, विंड क्या है, इवेपोरेशन के क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस. ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, जब उसके ऊपर हम क्या है, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे. नेक्स्ट वन इज थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन किसके साथ रिलेट करेंगे हम, यस, इंक्रीज इन इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन. अब स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब भी हम हीट करते हैं सॉलिड को तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, उनकी जो सेपरेशन है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है. मतलब मॉलिक्यूल्स आपस से सेपरेट आउट होने लगते हैं और क्या है, आपका जो सॉलिड है वो क्या हो जाता है, ओरिजिनल शेप से थोड़ा एक्सपैंड कर जाता है. तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. नेक्स्ट वन इज इनवार. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस विल बी पेंडुलम ऑफ द क्लॉक. इनवार क्या है, इनवार एक तरह का अलॉय है, किसका, निकल और आयरन का. ठीक है, क्या है, एक तरह का अलॉय है लिक्विड और निकल और आयरन का. और ये इसका क्या है, नेग्लिजिबल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है. मतलब अगर इसको हम हीट भी करेंगे तो ये बिल्कुल ना के बराबर एक्सपैंड करेगा. तो मोस्टली इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, जनरली इसको क्लॉक्स बनाने में यूज़ किया जाता है. राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द इनवार. सो द नेक्स्ट वन इज़ पायरेक्स ग्लास. पायरेक्स ग्लास क्या होता है, ये भी एक तरह का लो थर्मल एक्सपेंशन है. तो इसको किसके साथ मैच करेंगे, इसको हम मैच करेंगे कुकिंग यूटेंसिल के साथ. ठीक है, पायरेक्स ग्लास जनरली ये ग्लास की तरह ही दिखता है, बट पायरेक्स ग्लास और ग्लास में दोनों में डिफरेंस होता है. पायरेक्स ग्लास में क्या होता है, इसमें भी लो थर्मल एक्सपेंशन, ये एक बोरोसिलिकेट ग्लास होता है और ये जनरली किसके लिए यूज़ होता है, कुकवेयर्स के लिए जनरली यूज़ किया जाता है. आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द क्लैरिटी फॉर द सेम. सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइट. A given volume of alcohol and same volume of water are heated from room temperature to same temperature, then आपको ऑप्शन सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. अल्कोहल एक्सपैंड्स मोर देन वाटर, अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स बट वाटर एक्सपैंड्स,
water contracts but alcohol expands, water expand more than alcohol. So students who knew the right answer, please comment it down first. What will be the right answer for this? I hope आपको क्वेश्चन समझ आ गया है कि उन्होंने बोला है कि आपको सेम वॉल्यूम का क्या दिया है, अल्कोहल दिया है, और एक गिलास में क्या दिया है, वाटर दिया है. इन दोनों को हमने हीट किया है, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका. सो द राइट आंसर फॉर दिस विल जो आपका अल्कोहल है वो एक्सपैंड करेगा मोर देन वाटर पे. क्यों एक्सपैंड करेगा? जैसे आपको मैंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक एक्सपेंशन होता है जिसको हम अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं. तो क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किसका, अल्कोहल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो इस करके आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए. ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जितना भी आपका, ये बताएगा आपको कि जो आपका साइज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो कितना चेंज करेगा विद चेंज इन टेम्परेचर. मतलब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, जो सॉलिड का साइज़ है वो भी एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. तो ये कौन बताता है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. ओके स्टूडेंट्स, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि अल्कोहल का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर. आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द क्लैरिटी फॉर द सेम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग अकर्स एट ऑप्शन ए ऑल टेम्परेचर, ऑप्शन बी एट फिक्स टेम्परेचर, ऑप्शन सी रूम टेम्परेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. So this is an easy question. Students, please comment it down fast. What is the right answer for this? So the right answer for this will be option B, fixed temperature. जो आपकी बॉइलिंग होती है किसके ऊपर होती है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, राइट, एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन जो कि ऑल टेम्परेचर पे पॉसिबल है, चाहे वो रूम टेम्परेचर है, चाहे कोई भी टेम्परेचर है, आपका इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर पे होगा, बट बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ही होगी, राइट. सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Evaporation takes place at option A fixed temperature, option B all temperature, option C room temperature, option D all of these. So students, what will be the right answer? This is also a pretty easy question. So the right answer for this will be all temperature. जो आपकी evaporation होती है किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है. तो evaporation में क्या होता है, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था evaporation क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, आयरन इंस आर कूल्ड बिफोर दे आर प्लेस्ड ऑन कार्ट व्हील्स, अ ग्लास टॉपर गेट्स टाइटन ऑन वार्मिंग नेक ऑफ द बॉटल, telephone wires slag in winter but become tight in summer, a little space is left between two rails on railway track. So students, what will be the right answer for this? Please comment it down fast. So the right answer for this will be option D, a little space is left between two rails on railway track. देखो स्टूडेंट्स, ये आपने खुद पर्सनली देखा भी होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स है उसके अंदर आपने जैसे ये है तो इसके बीच में थोड़े थोड़े ऐसे गैप्स छोड़े गए होते हैं. क्यों गैप्स छोड़े गए होते हैं? ताकि अगर आयरन इन फ्यूचर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो उनको इतनी इजीली स्पेस मिल जाए कि अपने अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए. देखो समर या विंटर में ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है आयरन, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो इसलिए बिल्कुल एक गैप छोड़ दिया जाता है इन दोनों के बीच में ताकि कोई भी डैमेज इसको ना हो पाए, राइट. आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ मेटल रोड डिपेंड्स अपॉन. ओके स्टूडेंट्स, जो मेटल रोड है वो उसका जो लेंथ इंक्रीज़ होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, द राइज इन टेम्परेचर, द मटेरियल ऑफ द रॉड, ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट, व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस? सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. देखो जो भी आपकी एक्सपैंड होती है, क्या आपका जो मेटल या कोई भी सॉलिड एक्सपेंड करता है तो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है. ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल वो किसका बना हुआ है, ठीक है. तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या डिपेंड करती है कि इसका जो इंक्रीज़ होगा मेटल रॉड का, ठीक है, कैसे होगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. हीट इज़ डैश्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग. बॉइलिंग के दौरान हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है, अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्ब होती है या कुछ भी नहीं होता, ठीक है. स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट इट डाउन व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. येस, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी. जब भी बॉइलिंग होती है तो हीट क्या करती है, अब्जॉर्ब होती है, ठीक है. देखो अब हीट क्या है, अब्जॉर्ब हुई तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, जिससे आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है. और इस पॉइंट पे क्या आके क्या होगा, जो आपके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी होती है
कि जो लिक्विड्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको वो ओवरकम करती है और बॉइलिंग प्रोसेस जो आपकी वो शुरू होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी. सो द आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, अब्जॉर्ब होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मूव टू द 19th क्वेश्चन. Cooling is produced in option A boiling, option B condensation, evaporation or none of these. So this one is also a really easy question. So the right answer for this is evaporation. जब भी evaporation होती है तो वहाँ पे cooling ज़रूर होगी. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि evaporation को क्या बोला जाता है, कूलिंग प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि देखो अब इवेपोरेशन होने के लिए इसको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए. अब वो हीट एनर्जी कहाँ से लेती है, वो अपनी सराउंडिंग एयर से या अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या है वो हीट एनर्जी लेती है. तो इसलिए हमेशा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट ज़रूर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडोथर्मिक मतलब ये हीट लेती है. ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जब भी कभी आपने अपने हाथ के ऊपर एसीटोन जो आपका नेल पेंट रिमूवर होता है उसके ऊपर अगर आपने अपने हाथ के ऊपर डाला होगा तो आपको हमेशा कूलिंग इफेक्ट आता है. क्यों आता है, क्योंकि जब ये इवेपोरेट होता है तो वो हमारे हाथ से क्या लेता है, हीट एनर्जी लेता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में क्या है, कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है. या फिर आपने कभी आपका जो पसीना है वो इवेपोरेट होता है तब भी आपको कूलिंग इफेक्ट मतलब मिलता है. क्यों, क्योंकि जब वो आपका स्वेट है जो वो इवेपोरेट होता है तो आपके क्या है, सराउंडिंग सीन से क्या है, हीट एनर्जी लेता है, जिसकी वजह से क्या है, आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी फॉर द सेम. सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड डैश हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इन इवेपोरेशन. सो दिस वन इज अगेन द इजी क्वेश्चन. रिलीज, अब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब और नन ऑफ दिस. जब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है जब इवेपोरेशन होता है तो हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं. दिस वन इज अगेन द सेम क्वेश्चन. सो एज द मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ताकि इस करके क्या है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी फॉर द सेम. सो दीज आर द 20 MCQs. इफ़ यू वांट, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि ये पार्ट 1 था वीडियो का, अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये MCQ सीरीज़ पूरा प्रोवाइड करूँ एंड आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी विद हितेश सर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.